السلام علیکم بیت اللہ وزائف ناظرین، آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ہم جو ہے سو آج قضائے حاجت کے دو نفل کا طریقہ قضائے حاجت کا دو نفل کا طریقہ ہے، وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے، جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پہلے ہم جو ہے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں گے۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جو بھی ہمارے جائز حاجت ہے اس کے لیے ہم یہ 2 رکعت نفل نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی جو ہے سو آزمودہ وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ لوگ اسے ضرور آزمائیں۔ یہ جو ہے سو ناممکن کو ممکن کرنے کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت جلد 8 دن 10 دن کے اندر آپ کی حاجت بھر آتی ہے، بشرط کہ اسے روزانہ ہم جو ہے سو اس کو پڑھیں۔ یہ جو ہے سو سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ یہ میں میرے ہر ویڈیو میں بھی بولتی ہوں، سب سے پہلے ہمیں نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے سو جو بھی ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو سو نیتیں صاف رکھیں، جو جیسے کہ کسی کی مصیبت پریشانی کچھ ہوا تو اس کے لیے مدد کریں۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، مستحق ہے، چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو، ان کو جو ہے سو آپ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی صاف دلی اور نیت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کام بناتے ہیں۔ جو ہمارے سے جو لوگ حسد کرتے ہیں ان سے جو ہے سو ہم ویسے تو دل تو جو ہے سو کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی راضی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ زیادہ نہیں، کبھی کبھی نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اگر جو ہمیں دلی تکلیف دیتے ہیں انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ بس جیسے کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں، اگر آپ کو کچھ زیادہ دکھا تو آپ دوری اختیار بھی کر لے سکتے، جس سے ہمارے تعلقات بھی خراب نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو ہے سو رزق میں بھی جو ہے سو اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو تکلیف نہیں دے، رزق میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ تنگی نہیں لاتے ہیں۔ لیکن اگر جس سے تعلقات اچھے ہیں آپ ان کی برابر آپ مدد کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جیسے صدقہ دینا، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اب جیسے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، جو غریب مستحق ہے، ان کو آپ دیے تو بہت زیادہ آپ کو ثواب ہوگا۔ یہ 2 رکعت قضائے حاجت کے نفل نماز ہے، جو ہے سو بہت ہی آزمودہ ہے۔ ہمارے پاس جو ہے سو کرایہ دار نہیں آ رہے تھے گھر میں، تو میں جو ہے سو 10 سے 11 دن کنٹینیو یہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 8 دن کے اندر جو ہے سو 8-10 دن کے اندر اس میں ہم مقصد میں کامیابی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی خلوص نیت سے اور جو ہے سو اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ کوئی مخصوص منت کے لیے یا اس کے لیے، یا ہر حاجت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہو، یا کسی کو جو ہے سو ملازمت، تجارت کا، روزگار کا مسئلہ ہو، انہوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو گھر میں لیڈیز پڑھ سکتے ہیں، اگر جینٹس بھی پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، جو ہے سو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں کے ایگزام میں کامیابی کے لیے بھی ہم گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے 2 نفل نماز یہ کبھی بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ ہر وقت آپ کو جب بھی سہولت رہیں گی تب آپ اس کو
पढ़ सकते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए, या किसी का घर नहीं बिक रहा हो उसके लिए, कोई खरीदना चाह रहे तो नहीं हो रहा उसके लिए, आप हर जायज़ मकसद के लिए आप इसको कर सकते हैं, जो है सो 2 रकात नफिल नमाज। ये जो है सो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए आप लोग भी जानते होंगे, जो है सो ये यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए थे, तभी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने इन्हें उसमें से सही सलामत निकाल के लाए। तो जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जब चले गए थे, तब उन्होंने ये आयत पढ़ी थी। तो अब हम जो है सो इसे आयत को लिखेंगे। ला इलाहा इल्ला। इसके कई तरीके हैं नाज़रीन, इसके भी कोई जो है सो इसे 1.25 लाख मरतबा भी इसको पढ़ते हैं, कोई जो है सो 40,000 बार भी पढ़ते हैं, जैसा चाहे आपको जैसा मुनासिब। कोई जो है सो इसको 1.25 लाख मरतबा करते बोल के, दस्तर करते बोल के भी कोई मन्नत कर लेते हैं, कोई लोग ऐसा भी कर सकते हैं। कोई दस्तर रख के किसी एक दिन घर में जो है सो लोगों को आप बुला के जो है सो आप इसका 1.25 लाख का दस्तर ख़त्म करा सकते हैं। अगर कोई आपके रिश्तेदार कोई भी रहे, या कर ले सकते हैं, सब मिल के भी इसको 1.25 लाख मरतबा भी कोई मन्नत के लिए आप इस ये आयत को आप कर सकते हैं। और इसको रोज़ाना भी आप जो है सो पढ़ ले सकते हैं, जैसा रोज़ाना जो है सो 1000 मरतबा, या नहीं तो इस 2-3 तस्बीह, या नहीं तो नमाज के बाद आप जो है सो 41 टाइम ऐसा भी आप इसको जो है सो पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो है सो आयत है। इस आयत का तर्जुमा जो है सो, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जालिमों में से हूँ। इसका जो है सो तर्जुमा है, जब भी हम अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं। ये आयत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है सो जब मछली के पेट में थे, तब जो है सो उन्होंने ये आयत कंटिन्यूस में पढ़ी, इसलिए अल्लाह ताला उनको उसमें से भी बचा के सही सलामत निकाल के लेके आए। तो हमें ये जो दुनिया की तकलीफ़ें मुसीबतें हैं, अल्लाह ताला इसमें से क्यों नहीं निकालते, हमें इसमें से भी हमें निकालते हैं। बस हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और इबादत करके अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करना चाहिए। चलिए नाज़रीन, मैं अब जो है सो नमाज की तरफ जाती हूँ। हम जो है सो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। ये कभी भी आप दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बस कि जो है सो बच्चे छोटे रहते हैं, उन्होंने कभी भी दिन में ईशा के बाद भी आप जो है सो इसको पढ़ सकते हैं। 2 नफिल रकात है, 2 रकात नफिल, 2 नफिल रकात जो है सो हम इसको जो है सो अल्लाह ताला से मनाने के लिए हम इसे कभी भी आप इसको जो है सो कर सकते हैं। हम क्या है, पहले जो है सो आप इत्र लगा लें, जो बिल्कुल थोड़ी सी खुशबू वाला गुलाब का इत्र रहता है, वो आप ले लें। थोड़ा सा लेडीज़ के लिए वो थोड़ा सा लेके लगा लें। आप वज़ू करने के बाद आप इत्र लगा लें। उसके बाद 2 रकात नफिल की आप नियत कर लें। 2 रकात नफिल नमाज क़ज़ाए हाजत के पढ़ती हूँ, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ ख़ास अल्लाह ताला के वास्ते बोल के आप जो है सो जैसा जैसा रोज़ नमाज पढ़ते हैं वैसा पढ़ लेना है।
फिर जो है सो रुकू में जाना है, सिजदे में जाना है। सिजदे में जाने के बाद में हमें ये आयत 40 मरतबा पढ़ना है। बीच में तो हम जैसा रोजाना नमाज पढ़ते हैं वैसा सूरह फातिहा के बाद कौन सा भी सूरा हम इसको पढ़ लेना है उस रकात में। फिर सिजदे में जब जाएंगे, सिजदे में झुक के हम इसको 40 मरतबा पढ़ना है, 40 मरतबा पढ़ना है। फिर सिजदे से उठना है, फिर रकात बांधना है, सुकून से पढ़ना है, आराम से। आप जितना हो सके जैसा सिजदे में काउंट कैसा करेंगे वो तो छोटी तस्वीर रहती वो भी रख ले सकते हैं आप, या आप कैसे उंगलियों से भी आप ऐसा हिसाब करके भी आप ऐसा पढ़ सकते हैं। 10 फिर 10 फिर 10 10 40 हो जाते। ऐसा भी दूसरे में एक पढ़ लिए, फिर इसको जो है सो एक अपन यहाँ तक 10 पढ़ने के बाद फिर दूसरे हाथ की एक एक बॉक्स रहता ना दूसरे हाथ का, उसको काउंट कर लेना। ये 10 का हो गया, फिर ये 20, फिर ये 30, ये जो है सो 40। ऐसा यहाँ तक हम ऐसा सिजदे में ऐसा करके इशारे से भी हम इसको कर ले सकते हैं। ऐसा 40 मरतबा हो जाता एक सिजदे में, 2 सिजदों में। फिर एक सिजदे से उठ के फिर हम दूसरे सिजदे में भी फिर इसको 40 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उठेंगे, फिर दूसरी रकात बांधेंगे, फिर दूसरी रकात बांधने के बाद में फिर हम जो है सो दूसरे फिर तीसरे सिजदे में भी हम ऐसे ही करेंगे, फिर 40 मरतबा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐसा आप जो है सो आराम से इसको 40 मरतबा पढ़ना है। फिर उठना है, जो फिर दूसरे सिजदे में जाना है, फिर उसमें भी हमें जो है सो ये 40 मरतबा इसको पढ़ना है। ऐसा पढ़ के फिर जब हम अत्तहियात सो पढ़ने के बाद में फिर हम इसको जो है सो ये आयत करीमा अव्वल व आखिर मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के जो है सो हम क्या बोलते सो 100 मरतबा जो है सो ये आयत फिर इसको 100 मरतबा हम पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु 100 मरतबा यानी एक तस्बीह हम इसकी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ जैसा आप पढ़ना चाहे 11 मरतबा 7 मरतबा जैसा चाहे आप जो है सो दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद में सिजदे में चले जाएं। फिर सिजदे में जाने के बाद में आप जो है सो 11 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जाके इसमें अल्लाह ताला से दुआ करें। सिजदे में जाने के बाद 11 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रो के आप दुआ करें, जिससे अल्लाह ताला आपकी परेशानी जो है सो अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। ये इतनी पावरफुल नमाज है, इंशाअल्लाह ताला जो भी इस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी गारंटी से होंगी। ये मेरा भी आजमुदा बहुत ज़्यादा आजमुदा वजीफ़ा है। बस इतना है कि ज़रा झुक के जो है सो आराम से पढ़ने का है। ये 40 मरतबा आयत अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कर लिए तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देंगे। उसमें हर अल्लाह ताला हर जो भी मकसद जायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे उसमें अल्लाह ताला काम आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें, रो के अल्लाह ताला मेरा फलाना काम जो अटके हुआ है रुके हुआ है वो काम मेरा नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला से आजिज़ होके दुआ करें। अल्लाह ताला इस नमाज के वसीले से इस आयत के वसीले से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को आपने जिस तरह से उसमें से मछली के पेट में से निकाले, अल्लाह ताला उसी तरह से मेरे को भी हर मुसीबत से हर परेशानी से मेरा जो आपका जो भी मकसद रहा आप उसको सिजदे में अल्लाह ताला के सामने रखें। बोलें अल्लाह ताला उसमें मेरे को कामयाबी अता फरमाए। मेरे बच्चों को जो है सो एग्ज़ाम में कामयाबी अता फरमाए। मेरे शौहर के रोज़गार में बरकत अता फरमाए। या बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही उनके लिए आप जो भी दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से आप जिस मकसद के लिए भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी नसीब होंगी।
और ये नमाज जो है सो आप जब आपका जब तक मकसद नहीं हुआ आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो ये 10 से 12 दिन में हो जाता है। अपनी नीयत पे बात है, पर बशर्ते ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, जिससे अल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो आप भी इसको जो है सो, अब बाद लोग बोलते हैं बहुत देर हो गई, नहीं हो रहा बोल के छोड़ देते, लेकिन छोड़ना नहीं, इसको पढ़ना, कैसा भी करके इसको कंटिन्यू करना काम हुए तक। इंशाल्लाह वैसे तो हो जाएगा। हम मेरा भी बहुत जो है सो 10 से 12-15 दिन में मेरा काम हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का भी काम हो जाएगा। आपको भी अल्लाह ताला जो है सो हर जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। मैं भी आप सबके लिए कामयाबी की दुआ करूँगी। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए। और जो है सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी हिम्मत अफ़ज़ाई होगी। और जो भी मैं ये कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला और अच्छे से अच्छा इसको बोलने की और करने की मैं कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, जिससे मुझे भी हिम्मत अफ़ज़ाई होगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपके हर जायज़ मकसद में कामयाबी होगी। अल्लाह हाफिज़।